So the third method for solving the recurrences are recursion tree. So what exactly it says is that suppose we have a recurrence relation. If T of n was equal to 2Tn upon 2 plus Cn. If n was greater than 1 and is equal to suppose 1 or C. If n is equal to 1. इसके लिए reconciliation, this is for your merge sort again. Fine. Now कहते हैं the third method in the list to solve the recurrences or recursion trees. What it says is that try to construct a tree out of our recurrence relation. So what it says is that keep this t of n at the root. T of n is further broken into two recursive calls. Each of size n upon 2, it means t of n upon 2 and t of n upon 2. Now further, if we try to solve t of n upon 2, it will be broken, it will be, you can say, looked from the viewpoint of two recursive call. One is of size t of n upon 4 and other one is also of the same size. In the same way, t of n upon 4 and t of n upon 4. Is it fine? And just so on. Just keep on drawing this recursion tree. ये सब लोग बना लेंगे बेटे? Yes, no? Yes, no? Yes. T of n है, T of n की दो लिस्ट बनी, ये टू लिस्ट बनानी है, टू रिकर्सिव कॉल्स हैं, हर एक का साइज n अपॉन 2 है. तो फर्स्ट रिकर्सिव कॉल ये, सेकंड रिकर्सिव कॉल ये. अब जब ये इसने अपने आप को फिर से कॉल किया तो फिर किसके साथ कॉल करेगी? दो रिकर्सिव कॉल्स के साथ, टी ऑफ एन अपॉन 4 और टी ऑफ एन अपॉन 4 के साथ इसने कॉल किया. तो कहता है एक तो ट्री बना मेरा जो रेफरेंसेस का. अब कहता है दूसरे वाला जो ट्री बनाना है वो जो एक्चुअल टाइम टेकन है दैट इज इक्वल टू सी एन. देखो ये तो टी ऑफ एन जो है इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज रिकर्सिव टाइम, second one is the fixed time. Fixed time, but still dependent upon the input size. Dependent on n, input size पर depend करता है. तो कहता है जब t of n था तो t of n के लिए मेरा रिकर्सिव टाइम तो कितना था? t of n upon 2 और t of n upon 2. इसके लिए फिक्स टाइम कितना था? That was equal to cn. Yes, no? Fine. Cn था ना, t of n को जब मैं सॉल्व कर रहा था तो दो रिकर्सिव कॉल थी और एक Cn था. अब कहता है Cn इसके लिए लगा, उसके बाद जब नेक्स्ट वाली कॉल आई ये वाली, इसके लिए टाइम कितना लगा बताओ? C इंटू एन अपॉन 2. ऐसे ही इसके लिए कितना टाइम लगा? C इंटू एन अपॉन 2. अब नेक्स्ट पर आ जाओ. अब इस वाली टर्म को देखो, इसके लिए टाइम कितना लगने वाला है? C इंटू n upon 4 and in the same way c into n upon 4. Now look at this term and this also. They are also going to consume c into n upon 4 and c into n upon 4. If we just extend this recursion tree to one more level, then this term will be further extended to t of n upon 8 and t of n upon 8. And in the same way, this will also be t of n upon 8 and t of n upon 8. And in the same way, this again will be t of n upon 8 and t of n upon 8. And this again will be t of n upon 8 and t of n upon 8. अब कहता है इन वाले लास्ट वाले लेवल का भी टाइम रिप्लेस करो फिक्स वाला टाइम. तो कितना हो जाना है? c इंटू एन अपॉन 8. ऐसे ही c इंटू n upon 8, c into n upon 8, c into n upon 8, and in the same way c into n upon 8, c into n upon 8, and again c into n upon 8 और c into n upon 8. तो कहता है ये लेवल्स इसके बढ़ते रहेंगे नीचे दोनों ही साइड में. ये लेवल्स बढ़ने कब तक है? कब तक बढ़ने हैं बेटे ये लेवल? अब कहता है मान के चलो कि ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है. डन. अब लेवल 1 पे क्या हुआ? c इंटू एन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1. यस नो? इसका बेटे हमने क्या किया,
अब इसको क्या कर रहे हैं कि इसका इस वाले लिस्ट का साइज देख रहे हैं एन की वेरिएशन है क्या एग्जैक्टली तो इसको क्या लिख सकते हैं एन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1 और इसको क्या लिख सकते हैं बोलो एन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 इसको क्या लिख सकते हैं एन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड सो ऑन और लास्ट में जैसे जैसे हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें देन इट विल बिकम एन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k इज दैट फाइन अब कहता है कि ये ट्री जाना कहां तक है साइज 1 तक जाना है जब तक लिस्ट का साइज 1 ना हो तो लिस्ट का साइज 1 होने का क्या मतलब है कि ये वाली टर्म इट शुड बी इक्वल टू 1 means when your n upon 2 raised to the power k becomes 1 then the tree will end there अब कहता है कि इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 2 raised to the power k आएगी तो कहता है for n is equal to 2 raised to the power k this true may be assumed as in the form of a generalized or in the form of its generalized form तो कहता है n is equal to 2 raised to the power k तक हमें जाना है इस वाले ट्री में डन तो एक बार थोड़ा और इसको बेटर वे में देखें तो अब तक हमने क्या डिजाइन कर लिए दो ट्री डिजाइन किए थे आउट ऑफ दोज टू ट्रीज द सेकंड वन वाज द एक्चुअल ट्री डिनोटिंग द एक्चुअल टाइम टेकन c ऑफ n था फिर उसके बाद c into n upon 2 raised to the power 1 c into n upon 2 raised to the power 1 then c into n upon 2 raised to the power 2 c into n upon 2 raised to the power 2 and again c into n upon 2 raised to the power 2 c into n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2 तो इस तरीके से कहता है चलता जा रहा था जब तक कि साइज 1 नहीं हो गया था इसका जब तक ये वाली टर्म इज इक्वल टू 1 नहीं होगी थी या फिर बोलो कि जब n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k इज इक्वल टू 1 नहीं हो गया था तब तक हमने इसको प्रोसीड कराया था अब कहता है नेक्स्ट में क्या बोलता है अब हर एक लेवल का टाइम सम अप करो तो लेवल 0 का टाइम कितना हुआ c ऑफ n डन अब इन दोनों टर्म्स को सम अप करो इसका टाइम कितना हुआ ये भी इज इक्वल टू सी ऑफ एन अब कहते हैं थर्ड वाले लेवल का सम अप करो इसका भी टाइम कितना हुआ सी ऑफ एन इस तरीके से कहता है हर एक लेवल का जब टाइम आप सम अप करके जाओगे तो इट विल बिकम इन द फॉर्म ऑफ सी ऑफ एन तो कहता है हर एक लेवल मेरा सी ऑफ एन एक फिक्स्ड टाइम ले रहा है और मेरे पास नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं नंबर ऑफ लेवल्स हैं कितने के मेरे पास नंबर ऑफ लेवल्स कितने के अब कहते हैं k की वैल्यू निकालू कैसे कहते हैं दोनों तरफ log ले लो तो log ऑफ n इज इक्वल टू k डन तो कितने लेवल्स हैं इसके लेवल्स इज इक्वल टू k इज इक्वल टू log ऑफ n तो कहता है मेरे पास नंबर ऑफ लेवल्स log n है एंड ईच लेवल टेक्स हाउ मच टाइम proportional to cn then the total time taken may be written as may be given as वो क्या होगा t of n क्या हो सकता है log n मेरे पास लेवल है हर एक लेवल का टाइम कितना cn है तो टोटल टाइम कितना हो जाना है cn log ऑफ n तो कहता है ये इससे हमने क्या निकाला एक गेस किया ठीक है हमने क्या किया reconciliation given थी we made a recursion tree out of that and the recursion tree is suggesting that the proper guess to be made for solution of this problem using substitution method is cn log n. So this is the overall purpose of your recursion tree. Recursion trees are helpful only in generating a good guess for your substitution method to prove because while learning the substitution method we discussed that we need to make a guess now the overall solution overall proof was depending upon that guess how beautifully we guessed the function तो कहता है the recursion trees are only a way to provide a good guessing mechanism for your substitution method then this is nothing else but just a path or just a method to generate a good guess. Fine? Yes, sir. Every complexity notation, if we say that the complexity of this algorithm is of order this,
then we need to put a proper mathematical proof. But in recursion trees, there is no mathematical proof involved. While in substitution method, we prove it mathematically. So recursion trees are there just to help the substitution method and other methods to put a good guess. Once that guess is made, then we can just try to prove it using substitution method. Substitution method will be giving a mathematical proof to your solution. So this is its use. Fine. Now let us take another example and try to generate a guess for the recurrence relation which is given by that T of n is equal to T of n upon 2 plus C. If n is greater than 1 is equal to C if n is equal to 1. Now guess the algorithm for which this recurrence is going to be there. Can you guess the algorithm for which the recurrence is written in front of you? Try to guess. Yes, no? Binary search. Bilkul, definitely. This is for binary search. Binary search. Now try to generate a guess. Guess कैसे generate करेंगे? T of n will be at the top. Then T of n upon 2 will be there. Then T of n upon 4 will be there. Then T of n upon 8 will be there, and so on till T of n upon 2 raised to the power k becomes equal to 1, or you can say not this but its internal term, that is n upon 2 raised to the power k जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक. It means n is equal to 2 raised to the power k. This implies that k is equal to log of n. So this tree is going to contain log n base 2 levels. Is that fine? Now concentrate on the fixed time taken. Now this, the first level or the 0th level is going to take time c. Second level, कितना time लगेगा? Again c. Third level, again c, and so on. So each level is going to take time equal to c, and log n levels are there. So final guess, it will be c into log of n. So this is going to be the guess for this. So we need to prove it using substitution method. Substitution method से इसको prove कर लो. That's it. Is it fine? Any question? Any question? Now let us try to solve one more recurrence using the recursion tree and then go for the substitution method. So what it says is that let our recurrence is given by T of n is equal to T of n is equal to T of n upon 3 plus 2 plus T of 2n upon 3 plus theta of n. So this is the recurrence relation given. Fine. Now we need to prove. Now we need to guess a good g of n or good f of n that fits this recurrence relation. तो कहता है कि इसके लिए भी आगे दो चीजें हैं that we need to find t of n, or you can say we need to find the upper bound. For upper bound, we will go for a value that is greater than or equal to t of n, and if t of n is greater than or equal to some value, then we will say that we are targeting the lower bound. So हमें upper bound और you can say big O notation, lower bound और big omega notation, तो दोनों ही notations में इसकी हमें क्या करनी है? Complexity find out करनी है. The simplest of its fun. तो कहता क्या है? First of all कहता है इसको assume करो कि let t of n be equal to t of n upon 3 plus t of 2n upon 3 plus cn. ओके, थीटा को हमने थीटा ऑफ एन को क्या लिख लिया हमने? सी ऑफ एन लिखा. जब सी ऑफ एन को प्रूव करेंगे बिग ओमेगा के साथ, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू
और जब ओमेगा के साथ करेंगे तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, लेस देन और इक्वल। अब कहता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हमें रिकर्जन ट्रीज बनाना है, तो रिकर्जन ट्री बनाना शुरू करो। टी ऑफ एन एट द टॉप, then it will be conversed or you can say diverged to two recursive calls. First is of size n upon 3, second is of size 2 of n upon 3। दोबारा से फिर इस वाली टर्म को 2 में डिवाइड करो, ये वाली क्या होने वाली है, t of n upon 3 raised to the power 2, और ये क्या होने वाली है, t of, बोलो कितनी होने वाली है, सोच के देखो कितनी होगी है, बताओ सोच के। सर 2/3 2/3 का स्क्वायर और n, isn't it? ऐसे ये वाली टर्म कितनी होनी है, सोच के बताओ, सोच के बताओ ये वाली टर्म कितनी होनी है, लेफ्ट वाली 2n/3 square। 2n/3 स्क्वायर, इज इट फाइन? और इसकी राइट वाली कितनी होनी है, ये सोच के बताओ, बताओ बेटे, अरे सोचो ना, ये कितनी होनी है, सर 2 square n/3 square। 2 स्क्वायर, या फिर मैं 2/3 स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, n, यस नो, यस सर। लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट वाला लेवल सब लोग ड्रॉ करो बेटे अभी। गुड, तो हमने क्या किया, अभी एक चेंज किया कि ये वाली जो टर्म है ये क्या आनी चाहिए मेरी, t ऑफ 2n/3 का स्क्वायर आनी चाहिए। सब लोग बेटे मॉडिफाई कर लो इस टर्म को, इट वाज रॉन्गली रिटन 2/3 स्क्वायर। तो कहता है ये वाली टर्म आई t ऑफ 2n/3। कहता है आप क्या करोगे, इसका रिकर्जन ट्री एक जनरेट करोगे। अब कहता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग नाउ वी नीड टू ड्रॉ इट यूजिंग द फिक्स्ड टाइम टेकन। तो t ऑफ n के लिए फिक्स टाइम कितना लग रहा है, c ऑफ n डन, इसके लिए कितना लगेगा, बोलो c इंटू एन अपॉन 3, इसके लिए कितना लगेगा, c इंटू 2/3 n, फाइन। अब कहते हैं नेक्स्ट पर आ जाओ, इसके लिए कितना लगेगा बताओ, c इंटू एन अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2, और दूसरे में कितना लगेगा, c इंटू कितना 2n अपॉन 3 स्क्वायर। ऐसे इसमें कितना लगेगा, c इंटू 2n अपॉन 3 स्क्वायर, और इसमें कितना लगेगा, c इंटू 2/3 का स्क्वायर इंटू n। कहता है इतना टाइम लगेगा इसमें, डन। ऐसे ही कहता है नेक्स्ट वाले लेवल्स पर ले आओ उसको। अब कहता है एक चीज बच्चे ऑब्जर्व करना, कहता है इसके 2 पार्ट्स थे, दिस रेक्टेंगल वाज हैविंग 2 पार्ट। पहला जो पार्ट था वो क्या था, फर्स्ट पार्ट वाज दिस, फाइन, एंड द सेकंड पार्ट वाज इक्वल टू दिस। तो कहता है इन केस ऑफ बिग ओ नोटेशंस, बिग ओ नोटेशन मींस अपर बाउंड, तो अपर बाउंड के केस में मुझे कौन से वाली ब्रांच इसमें कंसीडर करनी है जो कि लॉन्गेस्ट रनिंग हो। सो विच वन इज गोइंग टू लास्ट लॉन्गर आउट ऑफ दीज टू, आंसर इट, out of these two which one is going to last longer, first one or second one, बेटे आवाज नहीं आ रही, the second one, ये वाली जो टर्म है ये वाली लंबी चलेगी क्योंकि वो पहले खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब while considering big O notation we will just target the second term, second वाली टर्म को हम टारगेट करेंगे, डन। और जब कहता है ओमेगा की बात आएगी तो कौन सी, विच टर्म विल लास्ट, यू कैन से अर्लियर आउट ऑफ दीज टू, वो कौन सी होगी, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन पहले खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं जो बिग ओमेगा नोटेशन को हम टारगेट करेंगे आउट ऑफ दीज, और यू कैन से फॉर दिस रेकरेंस रिलेशन, तो कहता है हम इस वाली टर्म को टारगेट करेंगे। तो कहता है इस रिकर्जन ट्री को भी, ये जो आपके सामने बना हुआ है, कहता है इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। फॉर बिग ओ नोटेशन हम क्या करेंगे, t ऑफ 2n
अपॉन 3 वाली ब्रांच को एक्सटेंड करके देखेंगे, और जो स्मॉल बिग ओमेगा वाली नोटेशन है उसमें हम किसको करेंगे, n अपॉन 3 वाली ब्रांच को एक्सटेंड करके देखेंगे, उसका हम टाइम लिखेंगे फाइनली। ओके, तो कहता है इसको थोड़ा सा और आप डाइवर्स करके देख लो। करो कोशिश सभी लोग। इस पूरी रेफरेंस में जो रिकर्जन ट्री है इसमें से बिग ओ के लिए सेकंड वाली को कंसीडर करो, उसका मतलब फर्स्ट वाली को ड्रॉ ही मत करो, जस्ट कीप ऑन लिविंग द फर्स्ट वन। आप सेकंड को ट्राई करो, और जब बिग ओमेगा के लिए सेकंड को छोड़ दो, फर्स्ट को ट्राई करो। करो सब लोग, ट्राई करो ड्रॉ करने की। ऑफ द रेफरेंस वन वाज इक्वल टू दैट टी ऑफ एन, t of n was equal to, let it be t of n is equal to t of n upon 3 plus t of 2n upon 3 plus cn for big O notation, or you can say for upper bound. upper bound में क्या होना है, t of n will be going to t of 2n upon 3, it will further go to t of 2 upon 3 raised to the power 2 of n, and further it will go to t of 2 upon 3 raised to the power 3n. yes no, ऐसे जाएगा ना बेटे राइट माउस में, देखो एक बार ऑब्जर्व करके, 2 upon 3 raised to the power 4 और n, yes no, अरे जाएगा नहीं ऐसे। yes sir, yes और 1 तक जाना है, 1 तक जाने का मतलब क्या है कि 2 upon 3 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 1 n इंटू n, कि जब तक ये इज इक्वल टू 1 नहीं होता तब तक चले जाना है। इट मींस हमने क्या अब तक एक्सपेक्ट किया यहाँ से, डेट 2 upon 3 रेज टू द पावर k इंटू n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर k क्या है, k क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द ट्री है, लेवल्स ऑफ ट्री, और या फिर रिकर्जन ट्री। अब कहता है इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर k, डन। इसके अलावा और क्या करें, कहता है log ऑफ n इज इक्वल टू k log 3 अपॉन 2, सपोज इसको बेस मान लो, कुछ e है सपोज, बेस इसका माना हमने e, इज दैट फाइन। तो k क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू log n बेस e अपॉन log 3 अपॉन 2 बेस e, यस नो। अब कहता है इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n बेस 3 अपॉन 2। ये सबको बेटे लॉगरिथमिक की एक इनइक्वालिटी सबको याद है, हम क्या करते हैं, log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c, इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधा, log ऑफ a बेस b, यस नो। इसको याद करो बेटे, इस प्रॉपर्टी को लॉगरिथम्स की, डन। तो हमने ये अप्लाई की, और लास्ट में हमारा क्या निकल कर आया कि नंबर ऑफ लेवल्स, कि इस ट्री के जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं, नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ दिस ट्री आर गोइंग टू बी इक्वल टू log ऑफ n बेस 3 अपॉन 2, डन, ओके फाइन। अब कहता है कि हर एक लेवल पर जो टाइम टेकन है, वो भी यदि इसको सी में आप ड्रॉ करके देखोगे तो हर एक लेवल पे सी एन ही टाइम आएगा बेटे, सी एन टाइम हर एक लेवल का है। तो कहता है टोटल लेवल्स log n बेस 3 अपॉन 2 है, और जो हर एक लेवल का टाइम कितना है, सी एन है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो गैस होगी वो कितनी होगी, सपोज सी एन की जगह हम डी ले लेते हैं, लेट इट बी डी, लेट इट बी डी, डी एन। तो कहता है टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जानी है इसकी, डी एन लॉग एन आ जाएगी, ये इसकी गैस है, फाइन। ये इसके लिए क्या है, एक गैस है, गॉट इट। एक बार बेटे सभी लोग 2 मिनट इसको देखो, ट्राई टू एनालाइज एंड देन आस्क क्वेश्चंस इफ एनी, सभी लोग। और इसके पैरेलली ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर योर स्मॉल ओमेगा, बिग ओमेगा नोटेशन। इसके साथ साथ बेटे इसको बिग ओमेगा नोटेशन में भी ड्राइव करो, करो सभी लोग, करो कोशिश, ओके।
now let us try to move for the big omega notation. Okay, तो big omega notation में होगा क्या, that it will start from t of n, fine, t of n से start करेगा, then t of n will move to t of n upon 3, then again it will move to t of n upon 2, n upon 3 raised to the power 2, yes, no, then again it will move to t of n upon 3 raised to the power 3, then further t of n raised to the power 3 raised to the power n upon 3 raised to the power 4 and so on. At the end किस पे खत्म होगा, 1 n upon 3 raised to the power k is equal to 1. अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो, so n is equal to 3 raised to the power k, so log e base n is equal to k log 3 base e, और k is equal to log n base e upon log 3 base e, it will be equal to log of n base 3. So k is equal to log n base 3. So the number of levels is equal to log n base 3. और एक चीज हमें ऑलरेडी पता है कि जब मैंने t of n ड्रॉ किया था तो t of n दो पार्ट्स में टूटा था, t of n upon 3 और t of 2n upon 3. अब कहता है सपोज इन दो लेवल्स के लिए ही मैं फिक्स टाइम का ग्राफ बनाऊं तो क्या बनेगा, it was taking as time c of n and it was taking time as equal to c into n upon 3, ये वाली टर्म, और ये वाली टर्म कितना टाइम ले रही थी, c into n upon 2n upon 3. अब कहता है इस लेवल का टोटल टाइम टेकन cn है, इस वाले को भी ऐड करके देखोगे आप, ये भी क्या आएगा, c of n आएगा. इस तरीके से कहता है आप इसको प्रोसीड करोगे आगे तो नेक्स्ट वाले लेवल का टाइम भी कितना आना है, इज इक्वल टू c of n आना. फाइन, तो हर एक लेवल का टाइम c of n है और टोटल नंबर ऑफ लेवल्स for lower bound is equal to log n base 3. It means your t of n will be always greater than or equal to cn log of n base 3. फाइन, क्योंकि हमने c को ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसमें तो हम इसको क्या भी मान सकते हैं कि d भी मान सकते हो, या फिर इतना भी ठीक है कि जो ओवरऑल गेस है, गेस फॉर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो क्या है हमारी cn log of n base 3 है. किसके लिए, लोअर बाउंड के लिए, और अपर बाउंड के लिए हमारी गैस कितनी थी, वो थी हमारी cn log n base, कितना था बेस उसके लिए 3/2. तो कहता है ये दो हमने गैसेस जनरेट की, एक बार ये दोनों गैसेस जब आ गई देन वी विल बी प्रूविंग देम यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब कहता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना कैसे है वो एक बार हम देख लेते हैं. वो देखना कैसे है, एक बार जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड. तो ये हमने सॉल्व करना शुरू किया था कि t of n was equal to t of n upon 3. एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर ममता मैम की क्लास शुरू हो गई है सर, वो एंटर करने को कह रहे हैं हमें. कोई बात नहीं बेटे, वेट करो, जिसको लीव करना है वो लीव कर जाए, अदर्स में स्टे. तो हमने एग्जांपल बेटे यहाँ से शुरू किया था that t of n is equal to this recurrence relation. उसके बाद हमने एक रिकर्जन ट्री जनरेट किया था. then we were able to guess that for lower bound we have a dn of log n base 3 and for upper bound we have a guess of dn log n base 3/2. डन. अब कहता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग अब इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना बेटे. सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हमने क्या किया, ये हमारी गैस थी अभी dn of log n. ओके, तो सेम प्रोसेस फॉलो करनी है इसमें. तो सेम प्रोसेस फॉलो करने के लिए दैट t of n इज लेस देन और इक्वल टू t of n upon 3 प्लस 2t of n upon 3 प्लस c of n. अब कहता है इसमें क्या करो, t of n और इन दोनों टर्म्स में ये जो हमने अभी भी गेस किया है सॉल्यूशन, इसको पुट कर दो. ओके, तो इसमें क्या किया, पुट dn upon 3 log of n upon 3, ऐसे ही इस वाली में पुट कर दिया सेम सॉल्यूशन. तो ये एक मेरे पास आ गई इसकी नई फॉर्म. अब कहते हैं थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो. ओके, सिंपलीफाई करने के लिए क्या किया, log n upon 3 को रिजॉल्व कर लिया, log n minus log 3. तो नेक्स्ट वाला स्टेप मेरा ये निकल कर आ गया बेटे.
डन, log 3 और log n में, ऐसे इसमें भी log 3 और log n में, तो इसको भी कर लिया आगे सिंप्लीफाई। अब नेक्स्ट में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो dn वाली टर्म्स को अलग करके सम किया, और जो 2n/3 वाली टर्म्स और log 2 वाली है उनको अलग करके सम किया। तो नेक्स्ट में हम कहाँ पहुंचे, इस वाली फॉर्म पे पहुंच गए, इस वाले स्टेप पर। अब कहता है इस वाले स्टेप को इसने लिखा, इफ दिस टर्म इज पॉजिटिव, कहता है ये वाली जो टर्म पॉजिटिव है, डन, सॉरी ये टर्म नेगेटिव है पूरी की पूरी, जितना मैंने बॉक्स किया है इसको, तो कहता है ये वाली जो टर्म होगी इसके नेक्स्ट वाली, ये इससे हमेशा छोटी होगी या बड़ी। इफ दिस इज पॉजिटिव then df n log n is always going to be lesser than this one। तो जो मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, कहता है if this condition is true, or you can say if this term is positive, then 2 is always going to be lesser than or equal to this, है ना। और इसके लिए थोड़ा सा और आगे चलो, इसको इसने बोला, है ना, इसने क्या बोला, इसको नेगेटिव कंसीडर करके चला, हमने इसको पॉजिटिव माना, तो सेम ही बात है बेटे ना। तो इसको जब ये नेगेटिव आएगी तो कहता है ये रिलेशन बनेगी, इसको और सॉल्व करके डी और सी के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। डी और सी में कहता है इस इक्वेशन के लिए ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू है, तो कहता है बेस्ड अपॉन दिस कंस्ट्रेंट वी कैन से दैट कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ बिग O ऑफ n log n। So this is for the proof of your upper bound। पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा है, पहले हमें रिकर्जन ट्री से गेस करनी है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उस गेस को प्रूव करना है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो जिनका